जो कुछ यहाँ कॉलेज में सीखा ना उन दिनों एज ए स्टूडेंट लीडर, अरुण जी से बात करके, रोहिंटन नारिमन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बने वो हमारी क्लास में थे, जस्टिस अर्जुन सीकरी वो एसआरसीसी में थे, उनके नोट्स पढ़ के हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। और फिर जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि वो बाकी सब ठीक है, छोटी सी गलती रह गई। मैंने पूछा क्या गलती रह गई? कुछ नहीं, छोटे ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा जी हुआ क्या? बोले वो एंकर है ना, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। देखिए ये तो बहुत आसान है कि किसी से रिलेशनशिप ना रखे और फिर उससे मुश्किल सवाल पूछे। असलियत तो यह है कि रिलेशनशिप रखो और फिर भी ऐसे सवाल पूछो जो उसको जवाब देने पड़े। I extend a heartfelt welcome to the second edition of Delhi University Literature Festival. Mr. Rajat Sharma is a prominent figure in the world of Indian media and journalism. He is best known for hosting the immensely popular show Aap Ki Adalat, which has captured the hearts of not only our nation, but also audiences worldwide for the past 3 decades. Mr. Sharma's illustrious career has seen him interact with renowned personalities from both India and around the globe. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life, a tradition that continues to captivate audiences to this day. Nearly 2 decades ago, Rajat Sharma embarked on a new venture, launching India TV, which has now risen to become one of the leading Hindi news channels in the country. Every night at 9 p.m., millions tune in to watch his live news show, Aap Ki Adalat, where his pungent commentary takes the center stage. But Rajat Sharma is more than just a television star. He is also a respected motivational speaker, often invited to share his insights in esteemed institutions worldwide. His influence extends far beyond the screen, as he is recognized as one of the most influential media icons across the globe. In the realm of social media, Mr. Rajat Sharma reigns supreme, holding the top position among TV news personalities on Twitter with an astounding 10.9 million followers. Born into humble beginning and educated in ordinary schools, Mr. Rajat Sharma's merit got him into Sri Ram College of Commerce. Here he formed bonds with individuals who went on to become world-class leaders in their respective fields. Mr. Rajat Sharma's involvement in student politics led to a period of imprisonment during the emergency. Undeterred, he pursued his education, earning an M.Com from SRCC and venturing into the world of journalism. Remarkably, at the age of 28, he assumed the role of editor for Onlooker magazine, followed by editorships at the Sunday Observer and the Daily. His Aap Ki Adalat was already a national-wide sensation when Rajat Sharma took the helm in 1993. Over the years, it has garnered even more fame and name, with luminaries like President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi gracing its stage on the show's 21st anniversary. Notably, it was on this platform that all 3 Khan superstars, Salman, Shah Rukh and Amir Khan, appeared together for the first time on national television. The impact of Aap Ki Adalat is undeniable. Icons like Swami Ramdev and Shah Rukh Khan openly acknowledge how the show played a pivotal role in their rise to stardom. Former President of India, Pranab Mukherjee, who honored Rajat Sharma with Padma Bhushan, urged him not to change his role, saying, "Please remain the public prosecutor of the people of India." This is the remarkable journey of Mr. Rajat Sharma, a name synonymous with excellence in the world of media and journalism. Now I hand over the mic to Mr. Rajat Sharma for his keynote address. Respected principal, SRCC में आके मुझे हमेशा एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे अपने घर लौट आया हूँ। इसी ऑडिटोरियम में न जाने कितनी बार 16-17 साल की उम्र में कभी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कभी पोइट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये ऑडिटोरियम इतना सुंदर नहीं था उस समय और कॉलेज भी कोएड नहीं था। जो गिनी चुनी लड़कियां थी कॉलेज में, वो कॉलेज के फैकल्टी के जो लोग थे उनकी बेटियां थी, तो वैसे भी डरते थे। और बची कुची कसर हमारे लीडर थे अरुण जेटली, जो इस कॉलेज की यूनियन के प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। वो मॉरल पुलिस थे,
वो न किसी लड़की से बात करने देते थे, न किसी से मोहब्बत करने देते थे। बहुत सारी यादें हैं जो इस कॉलेज से जुड़ी हैं। इसीलिए जब यहाँ बोलने के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने कहा था कि अपने लोगों के बीच में मैं क्या कीनोट एड्रेस दूँ, क्या भाषण दूँ। और जो लिखी स्पीचेस होती हैं आप जानते हैं बहुत बोरिंग होती हैं। तो मैंने कहा बेस्ट तो ये होगा कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, आपके मन में जो सवाल हैं वो मुझसे पूछें। मैं 30 साल से लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ और स्टूडेंट्स को मुझसे सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। और मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, अच्छे सवाल, मीठे सवाल, कड़वे सवाल, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। Today, Mr. Sharma will be in conversation with Mr. Shobit Mathur, the co-founder and vice-chancellor of Rishod University. From pursuing an international corporate career to building a grassroots volunteering movement to creating a higher education institution, Shobit carries a rich experience of building mission-driven projects. He intends to bring all his education and work experience together and reinvent higher education to serve the needs of the society, nation, and the world. He has an avid research interest in technology, education, and public policy. He writes often in leading newspapers and speaks on many international platforms on these issues. The stage is all yours now, sir. Thank you. Thank you to the organizers for giving me this opportunity to be able to interview the person who is known as the world's most famous interviewer himself, right? So, I mean, yeah, in some sense, this is a great honor for me to do that. And also, I have received a lot of questions from you beforehand. I've compiled some of them, summarized them, and then we'll open it up for all of you. So I'll begin with a few questions that I'm sure is on all of your minds. So sir, I mean, we have known you and the world knows you through Aap Ki Adalat ka program, right? ऐसा एक unique show, how did you conceptualize? ये idea आया कहाँ से? Because it stands out in global television history कि ऐसा एक show किसी ने सोचा भी होगा और जैसे हमने भी देखा कि running for more than 30 years now possibly, right? So ये कैसे आपने सोचा होगा? We would want to know. Yeah. देखिए, सब लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा शो है जिसको बहुत प्लानिंग की गई होगी, बहुत सोचा गया होगा, बहुत तैयारी करके, लेकिन सच ये नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था, ये एक चांस था। और कैसे हुआ ये आपको बताता हूं। 30 साल पहले उस समय सिर्फ एक दूरदर्शन नाम का चैनल हुआ करता था और एक प्राइवेट चैनल जी टीवी इंडिया में लॉन्च हुआ। जी टीवी के उस समय प्रोग्राम होते थे जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी। उसके ओनर सुभाष चंद्रा को मैं जानता था क्योंकि वो मुंबई में एसएल वर्ल्ड चलाते थे। मैं मुंबई में एक न्यूज़पेपर में एडिटर था, तो कभी कभी एसएल वर्ल्ड के बारे में गलत खबरें ना छपे इसके लिए वो अपना पीआर दोस्ती रखते थे एडिटर से, और उतना ही मेरा उनसे रिलेशन था। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही थी और उस फ्लाइट में मेरे साथ में हमारे कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट गुलशन ग्रोवर थे। गुलशन मेरे साथ बैठे थे और आइल में सुभाष चंद्रा और रमेश चौहान जो पार्ले के ओनर, ये दोनों खड़े हुए बात कर रहे थे। और सुभाष चंद्रा की एक फ्रेंच कट बियर्ड थी। तो गुलशन ने मुझे पूछा कि यार तू इसको जानता है, ये दाढ़ी को? तो मैंने कहा जानता हूं, बताओ क्या बात है। एडिटर की थोड़ी एरोगेंस भी थी। तो उसने कहा कि अगर इसके टीवी चैनल मतलब मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मुझे फायदा होगा, मेरा रेट बढ़ जाएगा, मेरी पोजीशनिंग इंडस्ट्री में बढ़ जाएगी। तो मैं वहां अपनी सीट से उठा, मैं सुभाष चंद्रा जी के पास गया। रमेश चौहान मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा भाई सुभाष जी, आपके जी टीवी में हमारा दोस्त है गुलशन, उसका इंटरव्यू करा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं साहब, मैं तो कोई इंटरव्यू करना जानता नहीं, आप उसका इंटरव्यू कर दो, हम दिखा देंगे। तो मुझे थोड़ा इंसेंटिव लगा कि मैं इतना बड़ा एडिटर और गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू करूंगा। तो मैंने उन सुभाष जी से कहा सुभाष जी देखिए, दो लोग बैठ के आपस में बात करेंगे, कौन देखेगा? तो रमेश चौहान ने मुझे पूछा फिर क्या होना चाहिए? मैंने कहा पब्लिक को बुलाओ, एक कटघरे में नेताओं को बिठाओ, उनको जूते मारो और तब पब्लिक को मजा आएगा, लोग देखेंगे। और मैंने 5-10 मिनट इस पर एक लंबा सा भाषण दिया। कोई सोचा हुआ नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। जब हम लैंड किए, मुंबई पहुंच गए, बात आई गई हो गई। एक हफ्ते बाद में सुभाष जी का मुझे फोन आया
और कहा कि भाई साहब आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बताइए, मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं, मैं आपके ऑफिस आऊँगा, मुझे काम है। वो आए, उन्होंने कहा कि आपने जो वो प्रोग्राम सजेस्ट किया था। तो मैंने पूछा कौन सा प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा वो जो आपने प्लेन में कह रहे थे ना कि अदालत होनी चाहिए, कटघरा होना चाहिए। तो मैंने कहा सुभाष जी, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, कोई प्रोग्राम नहीं। कौन कटघरे बैठेगा और कौन जूते खाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने क्रिएटिव लोगों को बताया था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा सुभाष जी छोड़िए, ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से उन्हें टाला। 3-4 दिन बाद फिर उनका फोन आया कि आपने सोचा। मैं उनके ऑफिस गया। मैंने कहा मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूं, मैंने हवाबाजी की, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। और मैं टीवी करना नहीं जानता, मैं टीवी देखता भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी वो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और 2 उनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स से, एक करुणा समतानी, एक कमलेश पांडे। कमलेश पांडे को मैं जानता था क्योंकि सुभाष घई की फिल्मों के वो डायलॉग राइटर थे। सौदागर के डायलॉग उन्होंने लिखे थे। उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। फिर ये दोनों लोग मुझे मिलने आए और इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये प्रोग्राम करना चाहिए। फिर इसका नाम आपकी अदालत कंसीव किया। फिर सोचा कि कैसे करें, मुझे कोई अनुभव नहीं था। और मुझे मालूम नहीं आपने से कितने लोगों ने वो पुराने प्रोग्राम देखे होंगे। 30 साल पहले के अगर आप शुरुआती दौर के प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें कैमरा एक आवाज लगती है। जो भी जब कोई आता है तो शाहरुख खान आपकी अदालत में हाजिर हो, और वो जब आवाज लग रही है तो एक कॉरिडोर है जिसके ऊपर कैमरा जाता है। वो SRCC का हमारा ये कॉरिडोर है। क्योंकि मेरा कॉलेज से इमोशनल अटैचमेंट था, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता था हर जगह मैं कॉलेज को घुसा दूं। तो उस प्रोग्राम में भी शुरुआत में वो था। अब तो खैर उसका पूरा फॉर्मेट बदल गया, अब तो तरीका भी बदल गया, पूरा रिकॉर्डिंग का तरीका बदला है। लेकिन वो 30 साल पहले इस तरह से आपकी अदालत शुरू हुआ। और किसी को उम्मीद नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल ख्याल नहीं था कि ये प्रोग्राम शुरू होगा तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर। आई थिंक जैसे बैक स्टोरी ऑफ एनी ग्रेट शो होता है, आई थिंक इट्स वेरी यूनिक दैट वी केम टू नो एंड लॉट ऑफ लेसन्स ना उसमें कि कैसे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लिया सुभाष जी से बात करने का एंड स्पीकिंग योर माइंड, द क्रिएटिव साइड ऑफ रजत जी विच केम्स आउट की कंसीव्ड अ न्यू शो इन जस्ट ऑन द फ्लाई, राइट, एंड विच हैज टर्न्ड आउट टू बी हिस्टोरिकल। तो इन 30 सालों में सर मे बी मोर देन 1000 पर्सनैलिटीज़ को आपने इंटरव्यू किया एंड जैसे आपने बोला कि रियली उनको कटघरे में खड़ा करके यू हैव ग्रिल्ड देम। सो अमॉन्ग ऑल दिस अगर आपके मन में आता है वन ऑफ द टॉप फ्यू शोज जो पर्सनली यू वुड हैव फेल्ट वेरी एनरिच्ड की उनको इंटरव्यू करके, तो व्हाट वुड बी ऑन योर माइंड? एक तो पहला शो, अब क्योंकि आपने पुरानी बात की, मुझे याद आ रहा है कि जो 30 साल पहले 12 फरवरी 1993 को पहला शो रिकॉर्ड हुआ था और उसमें हमारे गेस्ट थे लालू यादव। लालू जी उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन पहला शो लालू जी का रिकॉर्ड नहीं होना था, पहला शो रिकॉर्ड होना था खुशवंत सिंह का। खुशवंत जी इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर रह चुके थे, बड़े रिनोन्ड राइटर थे और अपनी राइटिंग्स में वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल चीजें कहने के लिए जाने जाते थे। वो किसी की भी ओबिचुरी लिख सकते थे, किसी की सेक्स लाइफ के बारे में कमेंट कर देते थे। तो मैं उनसे अपना शो शुरू करना चाहता था और जब मैं उनके पास गया, उनका बहुत प्यार मुझे मिला, बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा कि देख तेरा ये जो प्रोग्राम है ये कुछ पागलों जैसा प्रोग्राम लग रहा है, तो मैं 12 बजे आऊंगा क्योंकि 12 बजे सरदार जी पागल हो जाएंगे और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। उनका कहने का अंदाज ही बिल्कुल अलग था। लेकिन और लालू जी का प्रोग्राम उस दिन रिकॉर्ड होना था शाम को 4 बजे। खुशवंत जी के प्रोग्राम के लिए मैंने ऑडियंस के लिए बुलाया था SRCC के स्टूडेंट्स को, मिरांडा हाउस में कुछ लड़कियों को जानता था उनको। तो और 4 बजे लालू जी के लिए हमने जो हमारे बिहार के अलग अलग जगहों से स्टूडेंट से उनको बुलाया हुआ था। अब देखिए किस्मत का खेल, सुबह 10 बजे मुझे लालू जी का फोन आया, भाई साहब। मैंने कहा हाँ भाई साहब, हमें तो आज शाम को पटने जाना है। मैंने कहा लालू जी इतने मुश्किल से ये सेट बना है, प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो हम अभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा अभी कैसे आएंगे? मैंने कहा अभी तो हमारी तैयारी भी नहीं हुई है, 10 बजे से 11 बजे तक मुझे रिहर्सल करनी है, हमारे तो कैमरामैन भी नहीं पहुंचे होंगे।
भाई साहब हमारे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, इनको लेके आते हैं। Nobody had any idea of a TV show, what camera is, how the programs are conducted, how the audience is invited, and Laluji was the last person to have an idea. And he put down the phone and he left. मोबाइल फोन नहीं थे। मैं बिहार भवन फोन किया, पता चला वो निकल चुके हैं स्टूडियो के लिए। ये ईगल स्टूडियो था नोएडा में। मैं अपने घर से निकला, जल्दी से पहुंचा, वहां पर भी पेंट हो रहा था, कटघरे में कीलें ठोकी जा रही थी। रात में जिन लोगों ने लाइटिंग की थी वहीं फ्लोर पे अखबार बिछा के सोए हुए थे। उसके जो डायरेक्टर साहब थे वो छत के ऊपर जो चारपाई है उस पर सो गए थे। तो मैंने सबको कहा भाई ऐसे ऐसे लालू जी कह रहे हैं और हम 12 के बदले हमको 11 बजे प्रोग्राम करना होगा, पॉसिबल है? तो सबने कहा कि अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। रिहर्सल नहीं होगी, सीधे आपको शो ही शुरू करना पड़ेगा, मुसीबत आपकी है। लालू जी पहुंच गए। मैं लालू जी को थोड़ा दिखाने लगा, ये स्टूडियो है, ये देखिए, ये तो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड होता है, यहाँ वीडियो है, ये है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हैं? तो मैंने कहा, तो कहने लगे शुरू करिए भाई साहब। और वो फिर स्टूडियो में आ गए। अब खुशवंत जी के लिए जज थी उस समय बहुत बड़ी राइटर थी नमिता गोखले। तो नमिता जी को मैंने कहा कि लालू जी के लिए जज थे कुलदीप नैयर, उनको तो 4 बजे आना था। तो मैंने नमिता जी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इनके जज बन जाइए। नो, आई डोंट लाइक दिस गाय। तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट किया, वो बैठी वहां पर जज की कुर्सी पे, लालू जी बैठे, हमने शुरू किया। अचानक लालू जी को कहा कि भाई साहब, मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि हम अभी जब छत पे गए थे आपका स्टूडियो की, तो सामने जो बिल्डिंग बन रही है उसमें मजदूर जो काम कर रहे थे वो बिहार के थे। तो लालू जी ने उनको, मैंने देखा था, कहा था आवा आवा, वो सारे आ गए थे। तो इन्होंने कहा आप इनको भी ऑडियंस में बिठाइए। अब एक तरफ तो वो लोग थे, देखिए एसआरसीसी के स्टूडेंट, मिरांडा हाउस की लड़कियां जो तैयार होके आए थे, और दूसरी तरफ ये शॉर्ट्स पहने हुए बिहार के मजदूर जिनके पूरा क्योंकि धूल में वो काम कर रहे थे। तो मिक्स्ड ऑडियंस वहां हो गई। फिर दोबारा शुरू किया तो एक आदमी दौड़ता और दौड़ता आया, उसने कहा कि भाई साहब नारियल तो फोड़ा नहीं, और उसने नारियल लालू जी के हाथ में दे दिया। लालू जी ने सेंटर में बिल्कुल नारियल फोड़ा और चारों तरफ नारियल का पानी और उसके टुकड़े बिखर गए। तो डायरेक्टर ने कहा कि अब अगर मैं शॉट लूंगा तो पैचेस आएंगे। तो पहले सफाई हुई, फिर हेयर ड्रायर लाके वो पैचेस को सुखाया गया पानी को, फिर दोबारा शुरू हुआ। अब मैंने अपना पहला सवाल पूछा, तीसरी बार फिर दरवाजा खुला और किसी ने फोन कर दिया था, तो कुलदीप नैयर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने कहा वो मेनू की करना है भाई। तो मैंने कहा नैयर साहब आप जज हैं, तो ये कौन है? तो मैं वो जज साहिबा के पास गया, मैंने कहा कि आप वो कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं, वो वाकई में जज बन गए। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। तो मैंने कहा मैडम ये असली अदालत नहीं है, ये शो रहा है। फिर उनको मैंने ये लालच दिया कि खुशवंत जी आ गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तो उनके लिए खुशवंत जी से मिलना बड़ी चीज थी, वो जल्दी से चली गई। नैयर साहब वहां बैठे, कुलदीप नैयर साहब का मेकअप भी वहीं बैठाकर किया गया, क्योंकि तब तक लालू जी रेस्टलेस हो रहे थे, भाई शुरू करिए। फिर हमने वो प्रोग्राम शुरू किया और हेड्स ऑफ टू लालू जी, उन्होंने ऐसे इंटरेस्टिंग जवाब दिए। वो प्रोग्राम जो बना उसमें मेरा कितना रोल था मैं नहीं कह सकता, लेकिन लालू जी ने उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। मेरे लिए वो बड़ा प्रोग्राम हुआ, खत्म हुआ, सबने कहा कि कमाल कर दिया आपने, ऐसे सवाल पूछे, ये बन गया वो बन गया। और फिर जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि वो बाकी सब ठीक है, छोटी सी गलती रह गई। मैंने पूछा क्या गलती रह गई? कुछ नहीं, छोटे ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा जी हुआ क्या? बोले वो एंकर है ना, आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैंने कहा बताइए, मैंने कहा शो कैसे होगा, आप कह रहे हैं छोटी सी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं आपका माइक नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा थ्रू आउट प्रोग्राम आपको पता था, आपको बताना चाहिए था।
फिर जितने सवाल मैंने पूछे थे वो सारे उन्होंने, क्योंकि हल्की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, उसको वो सुन के मुझे बताते थे और 1-1.5 घंटा लगा के वो सारे सवाल रिकॉर्ड किए, बाद में पैच वर्क किया। इस तरह से पहला शो आपकी अदालत का हुआ है। पावर ऑफ स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं ना, कि विदाउट अ स्क्रिप्ट एंड इफ यू डू इट एंड डेस्टिनी, जैसे कि लालू जी पहले आपके गेस्ट इसमें तो अगर स्क्रिप्ट होती भी कुछ नहीं कर सकते थे। राइट, तो ऐसे जैसे आपने बताया एज अ मेमोरेबल थिंग, ऑफ कोर्स द फर्स्ट गेस्ट इज ऑलवेज मेमोरेबल एंड बट ऐसे एज अ मोस्ट डिफिकल्ट गेस्ट अगर आप बताएंगे तो कौन रहेंगे? देखिए, डिफिकल्ट तो सब लोग होते हैं, हर एक आदमी के, क्योंकि जो लोग आते हैं दे आर ऑल ह्यूजली टैलेंटेड, दे आर ऑल वेरी स्मार्ट पीपल, दे हैव सीन लॉट ऑफ पब्लिक लाइफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन देम। इसलिए मैं तैयारी भी बहुत करता हूं, माई रिसर्च इज गोज ऑन एट टाइम्स फॉर 2 days 3 days। जिस प्रोग्राम ने मुझे बहुत परेशान किया और जिस प्रोग्राम को मुझे बहुत इंतजार था, वो प्रोग्राम था 2014 में नरेंद्र मोदी का, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। काफी मशक्कत के बाद वो टाइम निकाल सके, रात को 9:30 बजे का टाइम उन्होंने फिक्स किया था और उनके लिए ऑडियंस इकट्ठा करने में बिल्कुल कमी नहीं, जरूरत नहीं थी। हमारे यहां 250-300 की ऑडियंस होती है, तो 500 लोग ऑलरेडी आ गए थे और मैंने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को कहा था कि इसमें बीजेपी के लोगों को मत बुलाना, क्योंकि अगर मैं अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा, इलेक्शन का टाइम है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। सब तैयारी हो गई, आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड और मैं जानता था कि पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है अलग अलग विषयों पर। किस्मत देखिए, जब मोदी जी पहुंचे, करीब रात को 10 बजे पहुंचे, उनका गला बिल्कुल बंद था, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी और वो मेरे ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने वो कहा कि पंडित जी, हमेशा से वो पंडित जी कहते आए, अरुण जी की वजह, अरुण जी ने मुझे पंडित जी कहना शुरू किया था, ये सब लोग। तो उन्होंने कहा, पंडित जी मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि रोज रात को गला बंद हो जाता है, ये मैंने फैक्टर ही नहीं किया। एक्चुअली दिन भर 5-6 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करते हैं अलग अलग जगहों पे, और उस दिन वो पूरा वेस्ट बंगाल और बिहार से आए थे, वहां धूल होती है, धुआं होता है, तो शाम को गला बंद हो जाता है, ये मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? कहते कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि इसको कल सुबह करें आप, अर्ली मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा मेरे पास पार्किंग दिल्ली में नहीं है, मेरे पास पार्किंग सिर्फ अहमदाबाद में है, मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा, और क्योंकि कल अहमदाबाद से फिर मुझे साउथ जाना है और प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, पब्लिक मीटिंग लगी हुई है, देयर इज नो वे। करीब आधा घंटा तक हम बैठे रहे, फिर मेरी वाइफ रितु जी जो प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको काली मिर्च का पानी देती हूँ। तो उन्होंने कहा, रितु जी ये सारे इलाज रोज करता हूँ, कोई काली मिर्च पिलाता है, कोई मिश्री पिलाता है, कोई इलायची का पानी पिलाता है, कुछ नहीं होता, गले की अपनी सीमाएं हैं। तब तक 11 बज गए थे रात के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि नीचे जो ऑडियंस बैठी हुई है इसको एक बार अपने शक्ल दिखा दीजिए, ताकि लोग ये ना सोचें कि मोदी जी आए नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो स्टूडियो में गए, जो हमारा ऑडियो वाला था उसने, साउंड वाला, उसने उनको माइक भी लगा दिया। और मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप बैठेंगे, मैं 1-2 सवाल पूछूंगा तो लगेगा कि आपकी आवाज नहीं निकल रही, हम इसको दिखाएंगे कि मोदी जी आए थे लेकिन बोल नहीं पाए, देर हो गई थी। तो वहां बैठे, जैसे ही नरेंद्र मोदी स्टूडियो में एंटर किए, पूरा स्टूडियो गूंजने लगा, मोदी मोदी, हर आदमी चिल्ला रहा था जोर जोर से। तो मैंने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को बुलाया, मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि बीजेपी वालों को नहीं बुलाना। तो उसने कहा सर ये बीजेपी वाले नहीं है, वो देखिए मेरा चाचा है, कनाडा से आया, नाच रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। वहां से ये मोदी मोदी का ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद एक कोने में एक लड़की खड़ी थी, उसने मोदी जी को देखा, कहा मोदी आई लव यू। मोदी जी जोर से हंसे। एक सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसने कहा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए, एंड ही रियली गॉट इमोशनल। और फिर वो कटघरे में कुर्सी पर बैठे। तो मैंने कहा देखिए मोदी जी, आजकल मेरे पास में मोबाइल पर मैसेज आता है, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने कहा एक मुझे किसने मैसेज भेजा है, सोनिया बोली मनमोहन से अब तो बोलो है सरदार, वो बोले अब की बार मोदी सरकार। तो ये सुन के वो हंसे।
और फिर अचानक देखा कि उन्होंने ऑडियंस देखा, भाई ये मैं तो नहीं बनाता, आप लोग बनाते हैं, ये आवाज उनकी ठीक से निकली। और उसके बाद 1.5 hours नॉन स्टॉप वी रिकॉर्डेड द शो विद हिम, ही कुड स्पीक एंड दिस इज हाउ द शो केम। और ये बड़ा चैलेंजिंग था। जब वो खत्म हुआ फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कैसे आपकी आवाज आ गई जब वो गाड़ी में बैठने लगे? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी दैवी कृपा आप पर भी है, मुझ पर भी है, इसलिए ये शो हो गया। एंड एक्चुअली आई आफ्टर दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग उनके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए वो ये सब कर पाते हैं। And that show went on to get the highest viewership ever, about या हिस्ट्री में 30 साल के इतिहास में उतनी ज्यादा व्यूअरशिप किसी शो को नहीं मिली, और आज भी हम उसको कभी रिपीट करते हैं तो इट बिकम नंबर 1 शो। Amazing. So coming back to because I'm sure कि यहाँ पर जैसे आपने बताया आपका SRCC से एसोसिएशन, a lot of students here, थोड़ा बहुत if you can reflect back on your college life, I'm sure मतलब आप यहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, एंड आफ्टर कॉमर्स प्रोग्राम यू गॉट इनटू जर्नलिज्म, तो कैसे आपका अर्ली लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन हैज डेफिनेटली प्लेड अ रोल, तो उसको अगर आप रिफ्लेक्ट करके बता पाएंगे। इस कॉलेज में पहला दिन जो मैंने कदम रखा, उस दिन ने, उस एसोसिएशन ने मेरी लाइफ बदल दी, और मैं आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू SRCC। मैं गरीब परिवार से आता था, मुझे नहीं पता था SRCC क्या है, मुझे नहीं पता था ये बड़ा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। किसी प्रोफेसर को हम जानते थे, हायर सेकेंडरी में मेरे अच्छे नंबर आए थे, मेरिट में था, अप्लाई कर दिया था, लिस्ट में नाम आ गया, मैं लाइन में खड़ा था फीस जमा कराने के लिए, और मेरे पास में गुल्लक से निकाले हुए इधर उधर से इकट्ठे किए हुए 2 रुपए के 5 रुपए के नोट थे, 1 रुपए के सिक्के थे। तो जब मैं वो जमा करा रहा था, जो हमारे अकाउंटेंट थे उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया, ये कहाँ से आ जाते हैं, ये कौन गिनेगा इसको बैठ के, और देखो पीछे कितनी लंबी लाइन है। बात चुप तो रही थी लेकिन मैं क्या कर सकता था, तो मैंने कहा नहीं सर मेरे पास तो यही है। और जब उन्होंने गिने तो उसमें 3 रुपए कम पड़ गए, तब तो वो बहुत गुस्सा किया, और मैं जानता था कि अगर अभी फीस जमा नहीं हुई तो फिर नंबर नहीं आएगा। उस समय पीछे से एक आवाज आई कि माथुर साहब फ्रेशर से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। मैंने पीछे देखा, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक बेल्ट, यहां तक कि कल में एक हैंडसम लुकिंग मैन, वो अरुण जेटली थे। वो SRCC की स्टूडेंट्स यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे, और यहां विजय गोयल इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए वो आते थे कभी कभी। उस दिन वो बाई चांस वहां आ गए फ्रेशर्स को मिलने, उन फ्रेशर्स में उनको मैं मिल गया। उन्होंने वहां मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिए, फीस जमा की, रसीद ली, और मुझे कहा रसीद जेब में रखो। फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, अकाउंटेंट के ऑफिस से कैंटीन तक वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा अब तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे नहीं होंगे, चलो तुम्हें चाय पिलाते हैं। रास्ते में उन्होंने पूछा कौन से स्कूल से आते हो, मैंने कहा रामजस से। अच्छा हिंदी मीडियम के हो? मैंने कहा हाँ। तुम्हारे स्कूल से और भी स्टूडेंट्स आए हैं? तो मैंने कहा 9 लड़के हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ एडमिशन मिल रहा है। और भी किसी को जानते हो? मैंने कहा रामजस में मैं डिबेट्स में जाता हूं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ब्राइट उनको मैं जानता हूं, तो कम से कम 30-32 ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग स्कूलों के मेरे डिबेटर दोस्त हैं जिन सबके एडमिशन यहां हुआ है। मुझे नहीं पता था, वो तो अपने वोट काउंट कर रहे थे, अच्छा इसके पास 30-32 वोट है। वो कैंटीन में ले आए, चाय पिलाई, 30-32 वोट देख के उन्होंने समोसा भी ऑफर किया, और फिर चिट भेजे, विजय गोयल को बुलाया, मुझे उनको हैंडओवर कर दिया, और मैं विजय गोयल की इलेक्शन कैंपेन में लग गया। कब मैं उनके साथ स्टूडेंट बन गया, और उसके बाद कई साल तक विजय गोयल के एक 2 व्हीलर स्कूटर था, 7 नंबर स्कूटर था उनका, उसके पीछे जो सीट थी मेरे रिजर्व हो गई, क्योंकि मैं उनके भाषण लिख सकता था, मैं क्लासरूम्स में जाके उनके लिए कैंपेन कर देता था। और अरुण जी को लगा कि ये बहुत यूजफुल है। एक बार फिर वो आए तो उन्होंने फिर मेरे से बात कर, वैसे ही कंधे पे हाथ रखा, और फिर वो मुझे ले गए बस स्टॉप तक। वो यू स्पेशल पकड़ के नारायण आ जाते थे, नारायण विहार में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं करे तो आओ। उस बस की पीछे वाली सीट पर मैं बैठा उनके साथ में, और उनके घर गया, रास्ते में उनसे बात की, उनकी बातें सुनी। उन दिनों जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, देश में क्रांति हो रही थी, उसके बारे में जानकारी, और उन्होंने मुझे एक तरह से मेस्मराइज कर लिया। और उसके बाद मैं रोज किसी न किसी तरह बहाना बना के उनके साथ उसी बस में बैठ जाता था।
उनके साथ जाता था, वहां उतर के फिर दूसरी बस लेके वापस आ जाता था। इतना मैं आज कह सकता हूं कि उन्होंने जो मेरे कंधे पे उस दिन हाथ रखा था, जब तक वो जीवित रहे वो हाथ मेरे कंधे से कभी हटा नहीं। टर्म कि आपके जर्नी फ्रॉम कॉलेज लाइफ, इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिक्स, इन्वॉल्विंग इन डिबेट्स, मतलब कई बार हमें लगता है कि ऐसे फेस्ट, ऐसे कॉलेज इवेंट्स का क्या महत्व होता है, बट ईच ऑफ द स्टेपिंग स्टोन, जैसे आई एम श्योर जो आपने यू आर प्रोड्यूसिंग योर शोज ऑल्सो, जो आपने पहले किया होगा, डेफिनेटली स्पॉन्टेनिटी, वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हैज, जो कुछ यहाँ कॉलेज में सीखा ना उन दिनों एज ए स्टूडेंट लीडर, अरुण जी से बात करके, रोहिंटन नारिमन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बने वो हमारी क्लास में थे, जस्टिस अर्जुन सीकरी वो एसआरसीसी में थे, उनके नोट्स पढ़ के हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। और आई मस्ट से हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी के लोग, उस समय हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर सीबी गुप्ता, ऐसा सबसे रिलेशन था जैसे हमारे फैमिली का रिलेशन हो, घर के जैसा रिलेशन था, और सब लोगों के गाइडेंस थे। और मुझे लगता है वो सारी चीजें, जब कॉलेज के डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज के लिटरेरी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज के जो पोइट्री कॉम्पिटिशन्स है उनमें पार्टिसिपेट किया, उन सबसे जो सीखा, मुझे लगता है अल्टीमेटली जिंदगी में जब आपकी अदालत जैसा शो करना शुरू किया वो सब काम आया। थैंक यू सर। एक सवाल, क्योंकि आप अरुण जेटली जी को इतने करीब से देखे हैं और उनकी ज़िंदगी भर आप यू हैव वर्कड विथ हिम टुगेदर, कई बार हमें इन जो बड़े चेहरे होते हैं उनके पीछे उनकी ज़िंदगी क्या होती है वी डोंट नो, एंड पॉसिबली व्हाट वी कंज्यूम फ्रॉम मीडिया, हम अपना ओपिनियन बनाते हैं उनके बारे में। तो अगर उनकी ज़िंदगी से आप कोई ऐसे एक लीडरशिप लेसन हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि व्हाट इज इट दैट वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम हिम, वन पर्टिकुलर थिंग दैट वी कैन टेक अवे, आपके मन में कुछ आता है तो वी वुड वांट टू लर्न फ्रॉम यू सर। देखिए, उनके साथ मेरा 45 साल का साथ रहा, और मेरी जिंदगी के जितने भी बड़े फैसले हुए, चाहे मेरी पढ़ाई, चाहे मेरी वेडिंग, चाहे मेरे रिलेशंस, चाहे मेरा काम, हर में उनका सपोर्ट, उनका दखल, उनकी सलाह रहती थी। वॉज माई फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, एवरीथिंग। तो उनके बारे में बात करूं तो मैं कई दिन तक बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आज आपकी अदालत की बात करें, एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं, और रिसेंट है, आप लोगों को ध्यान होगा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय डीमोनेटाइजेशन पर कोई बोलता नहीं था, उसको डिफेंड करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा, अरुण जी आपकी अदालत करना चाहता हूं डीमोनेटाइजेशन आपके साथ, तो जरूरी है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, लगता तो है, आपको जवाब देने चाहिए, ठीक है। ही केम फॉर द शो। उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि ये पूछो, ये मत पूछो, ये खबर दिखाओ मत, कभी भी एक बार इंसिडेंट नहीं है जब उन्होंने रिलेशनशिप का कोई फायदा उठाया हो। शो जैसे मैं करता हूं ऐसे किया, ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था तो सवाल भी थोड़े मुश्किल थे। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, नॉर्मली वो लंच के लिए रुकते थे क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक था, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार मैं जा रहा हूं, काम बहुत है, और अंडरस्टैंडेबली डीमोनेटाइजेशन के बाद में प्रेशर बहुत था, वो चले गए। मेरी वाइफ जो शो को डायरेक्ट करती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यू वर वेरी हार्श विद अरुण टुडे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, कहने नो यू वर अनफेयर टू हिम। मुझे दिल में दुखा, लेकिन फिर मैं सोचा ठीक है अरुण जी मिलेंगे तो बात करूंगा। 2-3 दिन मुलाकात नहीं हुई। सैटरडे को रात को ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, रात को 11 बजे शो खत्म हुआ, 11:15 बजे मुझे अमित शाह का फोन आया। उन्होंने कहा कि पंडित जी दोस्त को तो छोड़ दिया होता। मुझे दुख लगा, मुझे लगा अगर ये कह रहे हैं तो वाकई में कुछ होगा। फिर एक और फोन आया उसके बाद, उन्होंने कहा कि भाई आपने दोस्त के साथ बड़ा अन्याय किया। अब मेरा वाकई में दिल धड़का और मुझे लगा कि मेरी वजह से अगर अरुण जी को दुख हुआ तो बहुत खराब बात है। नेक्स्ट डे वह संडे, सोचा फोन करूं नहीं करूं, क्या कहूं। करीब 10:15 बजे मैंने हिम्मत करके फोन किया, तो उनकी आवाज थी वो थोड़ी, नॉर्मली मेरे साथ ऐसी नहीं होती, भाई क्या बात है। तो मैंने पूछा अरुण जी कहाँ, यार कहाँ है आप, आजकल इतना काम है ऑफिस में, बोलो क्या बात है। तो मैंने कहा मुझे कुछ बात करनी थी यार, यहां मीटिंग चल रही है, जरूरी है कोई बात। ही चेंज हिज टोन।
तो मैंने कहा ज़रूरी है। तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी क्यों है? मैंने कहा आपकी आवाज़ इतनी कड़क है इसलिए। तो कहते आ जाओ, अभी आ जाओ। आई वेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिस, ही वॉज इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, फाइनेंस सेक्रेटरी और कितने कई 20 लोग उस रूम में बैठे हुए थे। ही कॉल्ड मी इनसाइड, ही सेड हाँ बोलो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अलग से बात करनी है। कहते तुम्हें क्या हो गया, तुम अलग से बात करने वाले तो हो नहीं, क्या बात है? ही गॉट अप, केम आउट, sat in that finance minister's chairs, a huge large room, just two of us sitting. तो उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है, what is your problem? तो मैं कहूँ I have come to say sorry. For what? क्या हो गया? तो मैंने कहा शो में मैं आपके साथ हार्श था, अनफेयर था। He said कौन सा शो? मैंने कहा जो आपकी अदालत कल रात को टेलीकास्ट हुआ। कहते तुम्हारा काम सवाल पूछना है, मेरा काम जवाब देना है। तुम हार्श पूछोगे, मैं हार्श जवाब दूंगा। हम क्या नूरा कुश्ती लड़ने के लिए बैठे थे? वॉज इट ए फ्रेंडली बाउट? तो मैंने कहा कि मुझे एक दो लोगों ने कहा कि आपको बुरा लगा होगा। कहते हैं किसने कहा? तो मैंने कहा मैं अब नाम तो आपको क्या बताऊं। तो कहते हैं कि यू आर अननेसेसरीली थिंकिंग अबाउट दिस। प्रोग्राम अच्छा तब बनता है जब हार्श सवाल पूछे जाते हैं, तब उसके जवाब भी ठीक से देते हैं। एंड डोंट बॉदर अबाउट इट। इतना बड़ा दिल। और जब मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस मैं यही कहने आया था, आप काम करो, मैं चलता हूं। अब मैं उठ के दरवाजे तक आया, फिर उन्होंने कहा अरे पंडित जी इधर आओ। वापस आया, भाई मैंने भी तो तुम्हें ठोका था शो में। भाई मैंने भी तो तुम्हें कहा था, ऐसा लग रहा है कि आप काले धन वालों के साथ खड़े हैं, आप ब्लैक मनी के साथ खड़े हैं। तो ये कोई वन साइडेड नहीं था, मैंने भी ठोका था। मैं कहा आपने भी ठोका था, बड़ी अच्छी बात है। एंड देन आई केम आउट। तो उनको लगा कि ये कहीं है ना सोचे चला जाए, हार सवाल पूछे थे, मैंने जवाब दे दिए थे। ही वॉज अ डिफरेंट मैन। इतना बड़ा दिल, समुद्र से बड़ा दिल और समुद्र जैसी गहराई और इतनी इंटेलिजेंस और इतना गुड ह्यूमन बीइंग, ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है और मुझे लगता है भगवान ऐसे लोग नहीं बनाते। I think from both the great leaders here, in that sense, something to learn from, right? How do you maintain professional distance while having a personal relationship as well on both sides, and doing your job which you are supposed to do, being the public prosecutor, right, of the citizens of India. Amazing job. I think one other thing, particularly आपके life से, I think which all of us here would want to learn from is, I mean, you started as a journalist, but then eventually you became an entrepreneur, and then obviously मतलब इतना बड़ा show, right? Many times people are unable to play multiple roles. मतलब हम एक profession लेते हैं, उसको हम ठीक से करते हैं, right? But multiple hats पहनना, particularly in a very tough business like television and news, तो वो आपने जैसे वो skills उठाए, और मतलब हमेशा आपकी story से ऐसा लग रहा है कि you have a spontaneity, you have a creativity, you have something in mind, but really making a business successful as India TV, वो मतलब if you can tell us a bit about your transition as an entrepreneur. Yeah. देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, मैं कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये जो काम करता हूं यही जानता हूं। और अगर इंडिया टीवी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना, इट बिकेम इंडियाज टॉप मोस्ट न्यूज चैनल इन हिंदी, इट बिकेम ए सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर, क्रेडिट गोज टू माई वाइफ हु एक्चुअली रन्स इट। शी इज एन एंटरप्रेन्योर। मैं SRCC से BCom ऑनर्स MCom करके आई एम सपोज टू बी द पर्सन हु नोज इकोनॉमिक्स, हु नोज बिजनेस। शी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, बट शी एक्चुअली रन्स द बिजनेस। शी इज द बिजनेस माइंड, एंड शी इज अ ट्रेन्ड टीवी प्रोड्यूसर। शी इज नॉट somebody who had come to do business. जब मैंने आपकी अदालत शुरू किया, उसके 5th एपिसोड में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो कपिल देव के साथ उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी थी, देव एंड देव, उसमें काम करती थी। कपिल अपनी कंपनी बंद कर रहे थे, देन शी जॉइंड ZTV, देन वी फॉर 5 years we together worked with ZTV, then we together made this company which started, became production house, then India TV. But throughout, she left me to do my editorial work. I remained the face. She worked from behind the scene, behind the camera. She is a editor, producer, lighting expert, everything. But in addition to this,
she took up the role of running the company as managing director. So all credit goes to her, and I salute her for running this company so successfully. Amazing. A very, very difficult business, and maintaining integrity or karna, I think, is very challenging. One last question from my side, and then we'll open up to the audience. आपने बताया कि right from your Ramjas college days, you were a debater, and that has always been with you. But definitely जब आप shows चला रहे होंगे, you would have faced कि जिस person को आप question कर रहे हैं, they would not give the answers the way you wish, and maybe कई बार it would have become very heated as well, right? At that point of time, in front of the camera, जब पूरी दुनिया आपको देख रही है, how do you maintain आपका composure, still represent the people of India, and also respect the person whom you are interviewing? ये एक tough balance होता है. कई बार we lose our cool, कई बार we lose the script and say something else. पर हमेशा हमने देखा है कि you still maintain your composure and do your job to perfection. तो वो चीज़ हम कैसे सीख सकते हैं? एक तो करेक्शन करना, आपने रामजस कॉलेज का, रामजस स्कूल, कॉलेज जिंदगी मेरी एक ही है. और मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी और कॉलेज में पढ़ता तो इतना लायक बन पाता, कभी नहीं. आपने कहा कि मुश्किल हालात जो होते हैं, देखिए दो तरह के लोग शो में आते हैं. एक तो वो जो बहुत तेजी से जवाब देते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, और एक वो जो जवाब देने में कमजोर होते हैं. मैं उन लोगों से कभी परेशान नहीं होता जो हाजिर जवाब होते हैं, जो मोदी जी जैसे लोग होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग होते हैं, अरुण जेटली जैसे लोग होते हैं, शशि थरूर जैसे लोग होते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जवाब नहीं देते. वो ऐसी ऑडियंस भी होती है आपके शो में. एक्चुअली ऑडियंस ही शो बनाती है. बिल्कुल. मैं जब शो प्लान कर रहा होता, मैं सोचता हूं कि जो ऑडियंस है, जो देश में लोग देख रहे हैं, उनके मन में इस व्यक्ति के लिए क्या सवाल होंगे. जिनका नाम आपने लिया वो तो अभी आए नहीं है, उनका मुझे इंतजार है. कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता थे, मोतीलाल वोरा, कांग्रेस पार्टी के रिसेंटली ट्रेजरर थे. थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई, तो इसलिए अब मैं उनके बारे में बात कर सकता हूं. वो उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, मोतीलाल वोरा. वोरा जी को मैंने आपकी अदालत में बुलाया, और अच्छे मेरे उनसे रिलेशन थे, और बड़े सीनियर आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे. तो मैंने कहा, पहला सवाल मैंने कहा, वोरा जी आपने उत्तर प्रदेश के राजभवन को राजनीति का अड्डा बना दिया है. उन्होंने कहा जी नहीं. मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखिए मुझे पता चला कि चंद्रा स्वामी ने राजभवन में आकर आपके लिए एक यज्ञ किया. नहीं तो. अब मुझे लगा कि मैं वोरा जी को चेक करूं, वोरा जी कुछ बोलो. तो वो 10-15 मिनट शुरू के बड़े मुश्किल थे, उनसे कोई भी जवाब निकलवाना. फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई, लेकिन वो प्रोग्राम को वो धीरे धीरे ही रहा पूरा. तो ये सिचुएशन मुश्किल होती है. जो एक कैरेक्टर था जिनसे मुझे लगता था वाकई में बहुत मुश्किल होगा, वो थे सलमान खान. सलमान खान से जब हमने इंडिया टीवी शुरू किया था, तब से हमारी तकरार थी. हमने एक स्टोरी की, दाऊद इब्राहिम के महफिल में गोविंदा डांस कर रहा है, उसके वीडियो हमने दिखा दिया. तो सलमान ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि आपको कोई हक नहीं दिखाने का. हमने कास्टिंग काउच पर एक रिपोर्ट की, स्टिंग ऑपरेशन किया. सलमान खान ने एक मीडिया के सामने जाके कहा कि ये इंडिया टीवी ने बहुत गलत काम किया है. फिर हम भी उनको ठोकते थे जब मौका लगता था. इस रिलेशनशिप की बैकग्राउंड में उनकी दबंग 3, दबंग 1 रिलीज होने वाली थी. तो हमने कभी उनको अप्रोच नहीं किया था. मुझे नहीं लगता था कि वो आपकी अदालत में आएंगे. वैसे भी मैं देखता था कि सलमान खान जब किसी को इंटरव्यू देते हैं तो कोई सवाल पूछ रहा है, वो इधर देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, उठ के उधर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं. वो कोई सीधे मुंह किसी को जवाब नहीं देते. ये उनका स्टाइल है. तो मुझे नहीं लगता था कि आपकी अदालत के लिए वो कोई अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होंगे. शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मुझे अप्रोच किया. शत्रु जी की बेटी सोनाक्षी को दबंग में लॉन्च कर रहे थे सलमान. शत्रु जी ने कहा कि अगर इस समय आप सलमान का शो कर दोगे तो, और थोड़ी देर सोनाक्षी को दिखा दोगे, तो बड़ा बूस्ट मिलेगा, बेटी की मदद हो जाएगी. शत्रु जी को मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. सलमान के भी बहुत दोस्त हैं. तो मैंने कहा शत्रु जी मैं शो कर दूंगा, लेकिन सलमान आएगा कि नहीं आएगा मुझे इसमें डाउट है. आएगा तो मैं ये कह सकता हूं, आई विल बी फेयर टू हिम. जो पुरानी हमारी टकरार है, इसको मैं छोड़ दूंगा. शो में कोई ऐसा नहीं होगा, उसको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. लेकिन सोनाक्षी को 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो शी इज अ न्यू कमर. तो उन्होंने कहा नहीं, उतना भी बहुत है, अगर इतना भी आपकी अदालत में दिख जाए तो उसको मदद करेंगे.
डेट तय हो गई, टाइम तय हो गया, सलमान खान आ गए मेरे ऑफिस में। सोनाक्षी, शत्रु जी और ऋतु जी ये लोग बैठे हुए थे। देन सलमान एंटर, सलमान ऐसे खड़े हुए। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना? मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हो मैं आपसे ना पूछूं। कुछ भी पूछो सर। और वो इधर देख रहे थे, उधर देख रहे। तो मुझे लगा ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर कैसे शो होगा, और कुछ नहीं बोल रहे थे वो। फिर मैं ऋतु जी को अलग किनारे पे ले गया। मैंने कहा मैं तो इसके साथ शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो जवाब नहीं देगा सीधे मुंह। तो शी सेड कि अब वो आए हैं, आफ्टर ऑल दिस हॉस्टिलिटी ही हैज कम हियर, नाउ यू कांट से नो टू हिम, लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि, तो मैंने कहा अगर वहां ऑन एयर जब शो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर इसने कुछ बदतमीजी की, झगड़ा होगा, अच्छा नहीं लगता। आई डोंट डू ए शो लाइक दिस, इट्स अ फ्रेंडली शो। तो शी सेड तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारा शो कैसा है? देन शी सेड ऐसा करो, शत्रु जी को इसमें जज बना दो, उनकी ये बहुत रेस्पेक्ट करता है तो कुछ करेगा नहीं। शत्रु जी को कहा, उसने कहा हाँ रेडी, हम तैयार हैं। शत्रु जी जज, सलमान खान एंटर करते हैं और वो कट घरे में फिर खड़े हुए। तो मैंने कहा बैठिए। मैं तो हर कोर्ट में खड़ा रहता हूं सर। अब हमारे कैमरा एंगल्स नहीं बनते, क्या बैठेंगे नहीं तो शो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि आप बैठेंगे तो शुरू करेंगे। मैं खड़ा ही ठीक हूं सर। तो मैंने जज साहब, मैंने कहा जज साहब मुल्जिम से कहिए कि वो अपनी जगह बैठे। तो शत्रु जी ने कहा खामोश, मुल्जिम अपनी जगह पर बैठे। तो उसने शत्रु जी ऐसे देखा, वो ही सेट डाउन। फिर कहता है ये आपका कटघरा कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है सर, मुझे ऐसे कंफर्ट की आदत नहीं है। खैर धीरे धीरे शो शुरू हुआ, मैंने उनसे बात करनी शुरू की। ये कोई भगवान की कृपा होगी, उन्होंने मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब देने शुरू कर। पहली बार उन्होंने अपने ब्लैक बक के केस के बारे में डिटेल में बात की। फिर उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उस केस के बारे में उन्होंने बात की। जब मुझे लगा इतनी बात कर रहे हैं तो मैंने ऐश्वर्या के बारे में भी पूछ लिया, और बुरा नहीं माना, उन्होंने उसका भी जवाब दिया। फिर मैंने उससे आप लगे यार कटरीना की भी बात कर लेते हैं। एंड ही टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। फिर थोड़ी देर में उनको लगा कि ये कुछ मैं ज्यादा ही बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि सर आप मेरी बहुत क्लास ले रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं क्लास नहीं ले रहा, मैं तो आपसे एक दोस्ती के लिहाज से। क्या कहा नहीं सर अब मैं, तो मैंने कहा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए कुछ भी। पूछना क्या है सर? वो वहां से उठे और मेरे बराबर आके खड़े हो गए और मुझे कहा सर ये बटन खोलो। तो क्योंकि खड़े रहते हैं जैकेट का बटन बंद रहता है, तो बैठो सर। बैठ गए। सर पुशअप पोजीशन में आ जाओ, और फिर पुशअप लगाने लगे। चलिए सर हो जाए। तो 1 2 3 4, उनको लगता था 5 6 के बाद में मैं गिर जाऊंगा। जब हम 15 16 तक पहुंच गए तो फिर उन्होंने रुके, मुझे देखा टाइगर हो सर, और फिर खड़े हुए हम लोग, फिर बैठे। एंड देन वी स्टार्टेड, वी कंक्लूडेड द शो। वेरी नाइस। अब दैट शो बिकेम, उस समय मोदी जी का शो नहीं हुआ था, इट वॉज द मोस्ट वॉच शो एवर, क्योंकि पहली बार लोगों ने सलमान को सवालों के सीधे सीधे जवाब देते हुए देखा था। अब मेरे मन में यह बड़ा सवाल था कि जब यह शो टेलीकास्ट हो गया, करोड़ों लोगों ने इसको देखा, उसके इतने अच्छे रिएक्शंस आए, व्हाट कुड बी सलमान्स रिएक्शन टू दिस? व्हाट इज ही थिंकिंग? कोई जरिया नहीं था, क्योंकि हमारा तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था बात करने का। शत्रु जी को मैंने पूछा, शत्रु ने कहा यार तुमने 5 मिनट सोनाक्षी को दिया, मैं उसमें खुश हूं। आमिर खान के नेफ्यू इमरान की शादी का रिसेप्शन था, तो वहां मैं अनिल कपूर और 1 2 लोगों के साथ खड़ा था। तो मैंने देखा कि सलमान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी को कहा यार मैं इसको यहां नहीं मिलना चाहता, पब्लिकली पता नहीं क्या कह देंगे, तो मैं कट लेता हूं। तो मैं दूसरी तरफ चला गया जहां पर शाहरुख, जैकी श्रॉफ ये लोग खड़े थे, इनसे बात करने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा ये उस तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी कहा यार इस पार्टी से ही निकल लेते हैं। तो इतनी देर में आमिर आ गए। आमिर ने कहा यार सर जाना नहीं है सर, ये अभी हम एक फोटो सेशन होना है, ये वो। फिर मैंने देखा सलमान बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो ऋतु जी ने कहा कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। शी वेंट अप टू हिम एंड शी सेड हेलो सलमान। अब मुझे मालूम नहीं इनकी दोनों बीच में क्या बात हो रही, काफी देर तक बात होती रही। देन ऋतु जी केम अप टू मी, शी सेड नो नो ही इज नॉट, ही इज वेरी हैप्पी विद यू एंड ही जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू।
मैंने कहा सलमान अपने बाप को थैंक यू ना कहे, मुझे क्या बात कर रहे हो। ही केम, ही हग्ड मी, और उनका जो मुंह है वो मेरे कान के पास था ऐसे, एंड ही रियली हग्ड मी टाइट, एंड ही जस्ट kept saying sir, 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 nothing else he said. Then he released me, looked into my eyes, he said sir, कमाल कर दिया सर, सर कमाल कर दिया सर। दिस इज हाउ। और उस दिन के बाद हमारे एक रिलेशनशिप शुरू हुई। टुडे वी आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं उनमें मैं सलमान को मानता हूँ। सलमान के जो करीबी दोस्त हैं उसमें एक तरह का फैमिली रिलेशन बना। तो आपकी अदालत ने मुझे बहुत कुछ दिया, और सबसे बड़ी बात ऐसे दोस्त दिए जो जिंदगी में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच डीपली इंसाइटफुल थिंग्स जो शायद पब्लिक डोमेन में हमें पता नहीं, एंड देन आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी हैज बीन ग्रेट फॉर मी टू गेट दिस स्टोरीज आउट ऑफ यू। We'll open it to the audience. I think the organizers can help us in passing the mics, and I don't know how we are doing on time, so we'll take questions. Yeah, please. So first of all, it's an honor to have you here. So welcome to SRCC. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि B.Com करके फिर M.Com करके आपका जर्नलिज्म में जाने का डिसीजन कब बना और क्यों बना? कोई डिसीजन नहीं बना, ये सब जिंदगी में एक्सीडेंट्स होते गए, मैं कुछ बनता गया। मैंने M.Com पास किया था, उसके बाद ये सोचा था, जब B.Com कर रहा था तब सोचता था कि बैंक में नौकरी करेंगे क्योंकि वहाँ ओवर टाइम मिलता है। गरीब घर से आते थे, यही सपना था छोटा सा। M.Com किया तो सोचा लेक्चरर बनेंगे और शाम को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाएंगे, इतना ही सपना था। जब M.Com के एग्जाम दिए और रिजल्ट आने बाकी थे, वो जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उन छुट्टियों के वक्त में मुझे कुछ काम करना था, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बाकी जितने पहचान के दो वो तो सब लोग छुट्टियों पर कहीं ना कहीं चले गए थे। तो उस समय एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जनार्दन ठाकुर, ही वॉज फ्रॉम आनंद बाजार पत्रिका, उन्होंने रिजाइन किया था और उन्होंने अपना एक फीचर सिंडिकेट शुरू किया था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर ए रिसर्चर। तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज ए रिसर्चर 400 रुपये महीने पर, और 1 महीने मैंने उनके साथ काम किया। वो मुझे बताते थे फला जगह से ये इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, मैं वो लेके आता था। वो जितना मांगते थे मैं उससे 4 गुना लेके आता था। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर कहीं ये हुनर है कि मैं लोगों से बात करके उनसे बात निकलवा सकता हूं, खबर निकलवा सकता हूं। राहुल गांधी के अलावा नहीं, वो अगर मुझे मिल जाए मैं निकलवा लूंगा खबर उनसे, ऐसी बात नहीं। वो क्या बोलते नहीं है। तो दिस वॉज द ट्रांजिशन, आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। दिस वॉज इन 1982। अब समझिए कि इट्स बीन 40 इयर्स नाउ। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई थी। I think if I can summarize, I think just taking opportunities as they come and whatever you have chosen to do, doing it really well, right? I think that is. मैं हमेशा सबसे ये कहता हूं, और अपने जो मेरे कुलीग्स हैं उनसे कहता हूं, और आपसे भी कहना चाहता हूं, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं, मौके आते हैं। हमको उन मौकों का इस्तेमाल करके उन मौकों को सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ये हमारा काम होता है। बाद में सोचते हैं अरे वो मौका था, मैं रह गया, मैंने नहीं किया। इसलिए जब मौका आए, ग्रैब इट, मेहनत करो, ईमानदारी से ताकत लगाओ, मेक दिस इनटू अ सक्सेस। Primarily, sir, I'm confident that I speak for everyone here, and in fact, all of India, when I say that, Rajat Sharma, sir, you have been a catalyst for change for the entire media industry, right? But sir, my question to you particularly would be that, of course, you are a public personality, and that explains, I do understand that because of that and your associations, you'd had association with a lot of political leaders for that matter, but don't you think there's an importance of, demarcation of that personal and public life as a journalist? Just to put that into perspective, I remember P. Sainath sir saying once that he didn't accept, say, the Padma Shri or the Padma Bhushan award because that's from the government about which they have to once write, right? They have to point out the shortcomings of this very government, so it wouldn't be very prudent to say accept that an award from that. And then we have leaders like the Honorable Prime Minister and the President coming in the inauguration function of India TV. So how would you, any views on that, please?
देखिए, ये तो बहुत आसान है कि किसी से रिलेशनशिप ना रखे और फिर उससे मुश्किल सवाल पूछे। असलियत तो यह है कि रिलेशनशिप रखो और फिर भी ऐसे सवाल पूछो जो उसको जवाब देने पड़े। कोई भी पिछले 30 साल में जितने गेस्ट आपकी अदालत में आए हैं, अरुण जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो तो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। चाहे मोदी जी हो, चाहे अरुण जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे गौतम अडानी हो, किसी को भी ये नहीं लगेगा कि इन्होंने छोड़ दिया। सवाल पूछने हैं, रिलेशनशिप होते हुए भी सवाल पूछने हैं, लेकिन आदर से, अदब से, रेस्पेक्ट से पूछने हैं। दुनिया को ये दिखाने की जरूरत नहीं, देखो मैं कितना बड़ा चैंपियन हूं, मैंने इसको ठोक दिया। ये मैं इस तरह के जर्नलिज्म का कायल नहीं हूं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दिन रात सबको गाली देते रहे, दिन रात सबको क्रिटिसाइज करते रहे? जो लोग इन पोजीशन पर पहुंचे, से आपने नाम लिया प्रणब मुखर्जी का, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने बनाया। और जिस देश की जनता 140 करोड़ जिस आदमी के साथ हैं, हम उसके दुश्मन हो जाएं? क्यों? कोई कारण नहीं है। दोस्ती रखो, रिलेशनशिप रखो, उसके साथ हिम्मत रखो उनसे सवाल पूछने की, ये असली बात है। Thank you, sir. I think very well said, right? And I think at least my personal learning besides sir for the last an hour or so is the humility that he comes with. He's taking all questions head on. He's answering them with composure, and he's being respectful, not just to the audience here, but we see in his entire career. I think that is something, as I interact with young people, we can learn from, right? We just take political sides and we are very harsh on the others, right? But how do we be respectful to both sides and maintain our professional integrity? Something that I took away from. Thank you everyone for being a part of this wonderful conversation. Thank you. Thank you, sir.